Part 7. X power cos x. f of x is equal to x raised to the power cos x. क्या करें? log. क्यों? And then it will become log of a power b. नहीं, log क्यों यूज करें? सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाएगी. सर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं. क्यों? सर x पावर फंक्शन को कोई बोलना चाहिए वेरिएबल पावर, वेरिएबल डेंसिटी फॉर्म. इसलिए पावर फॉर्म खत्म करेंगे by taking log. Log of f of x is equal to log of x raised to the power cos x. Ln of f of x is equal to cos x multiplied by ln x. Now differentiate both the sides with respect to x. We write d upon dx of ln of function is equal to d upon dx of cos x multiplied by ln x. जरा आराम से बोलो. डेरिवेटिव ऑफ ln हम इसी दुनिया के लोग हैं. डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ फंक्शन इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन टू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. और राइट साइड में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म. फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन टू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. अब देखो ना, जब तुम कुछ करते हो ये तरीका मुझे थोड़ा हमारा भी ख्याल करो. हालांकि तुम्हें बुखार बुखार के बाद जो शक्ल बन के आती है ना, वो हम देखते हैं. तो कम से कम झूठ नहीं बोलो. और मुझसे जो आदमी झूठ बोलता है, अगर तुम्हें बुखार नहीं तब हो जाएगा. देख लो, नहीं था ना? सच बोलो, सच बोलो. 1 upon f of x into d upon dx of f of x is equal to cos x multiplied by derivative of ln x plus ln x into derivative of cos x. ये हो गया 1 upon f of x multiplied by f prime x. Cos x multiplied by derivative of ln x is 1 over x. ln x into derivative of cos x, it is minus sin x. So f prime x is equal to इस f of x को शिफ्ट कर दे राइट साइड पे. डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x upon x minus sin x into ln x. Now f prime x is equal to f of x is equal to x raised to the power cos x into cos x divided by x minus sin x into ln x. इसका मतलब अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. x पावर x सॉल्व कर चुके हैं. x रेज टू द पावर cos x ये सॉल्व कर चुके हैं. अगर मैं कह दूं कि इसे डिफरेंशिएट करें, ये आपका असाइनमेंट है, ट्राई कीजिएगा. ये पास्ट पेपर्स में चूंकि आ चुका है और 99% बच्चे ये गलत करते हैं. आखिर कोई तो ऐसी बात होगी. आप ट्राई कीजिएगा, जिस पेज पे ट्राई करें वो पेज ले आइएगा. गलत हो सही हो जैसा भी, किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट पार्ट 8. ln x whole power sin x whole raised to the power sin x. ln x whole raised to the power sin x. तो यहाँ डायरेक्ट लॉ की प्रॉपर्टी को यूज नहीं हो सकती. It is not ln x power sin x. अगर sin x पावर ऑफ x होती तो आप लॉ की प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज कर लेते. क्योंकि ये होल रेज टू द पावर है, इसका मतलब यहाँ पे भी सिचुएशन प्रीवियस क्वेश्चन वाली ही है. Taking log on both the sides, so log of x raised to the power sin x. यहाँ पे ये चीज समझने की खास तौर पे जरूरत है. अगर लिखा हुआ है log of a power b, it is equal to b times log of a. मगर
अगर लिखा हुआ है log of a whole raised to the power b, it is not equals to b times log of. उम्मीद है कि ये चीज दिमाग में रहेगी. अक्सर बच्चे ln x whole raised to the power sin x को लिख देते हैं. Sin x ln x, which is absolutely wrong. Now, it is same as log of a power b. Log की property use की जा सकती है. It is equal to sin x into ln of ln x. Now differentiate both the sides with respect to x. We write d upon dx of ln of function of x is equal to d upon dx of sin x into ln of ln x. 1 over function into derivative of function. Again use product formula. It is equal to first function multiplied by derivative of the second function plus second function multiplied by derivative of the first function. ये हो गया 1 upon f of x multiplied by f prime x. Sin x as it is, derivative of ln function, it is 1 upon function into derivative of function. फंक्शन की जगह पे क्या है? तुम क्या इतनी देर क्यों? तुम इसका कहीं और खोलोगे? क्या सोच रहे हो? इधर हो, क्या एंटीबायोटिक खा के आए हो? तो डेरिवेटिव ऑफ ln x, which is 1 over x, plus ln of ln x multiplied by derivative of sin x, it is cos x. ये हो गया f prime x is equal to f of x डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया multiplied by 1 upon x into x, x square. x into x. 2x नहीं x into x 2x. अच्छा चलो ये सिंप्लीफाई करके देखा. ln x. ln x. x into ln x. आज अगर तुम ये गलत करते हो मैं चमाटे मारता सब चीज. ये x into x नहीं है, it is ln x into x. इसका मतलब ये x स्क्वायर मत लिख दीजिएगा. और ये 2x क्या आप बोल रहे थे आप? प्लस cos x multiplied by ln of ln x. Now it is equal to f prime x is equal to f of x, which is equal to ln of x raised to the power sin x multiplied by 1 upon multiplied by sin मैंने गायब कर दिया और बताया नहीं. ये sin x upon x into ln x plus cos x into ln of ln x. ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई. अब अगर फर्स्ट करे कोई बच्चा टाइम पास करना चाहता है एलसीएम लेके, एलसीएम लेने का कोई फायदा तो है नहीं, कोई चीज कैंसिल तो होगी. नेक्स्ट Or Sin inverse x whole power sin inverse x whole raised to the power ln x. ln x. So taking log on both the sides, log of f of x is equal to log of sin inverse x raised to the power ln x. Log of a power b, it is b times log of a. इसका मतलब ये हो गया ln x into ln of sin inverse x. Differentiate both the sides with respect to x. We write d upon dx of ln of f of x is equal to d upon dx of ln of x into ln of sin inverse x. Left side पे तो वही ln function, its derivative is 1 upon function into derivative of function. 1 upon f of x into derivative of f of x is equal to
अप्लाई करो. ln x into derivative of ln sin inverse x plus sin ln sin प्लस नहीं होता प्लस. sin ln sin inverse x तुम प्लस माइनस के साथ भी लाड करते हो. आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं, फारिग आदमी. ln x into derivative of ln sin inverse x plus ln sin inverse x into derivative of ln x. ये बन के मेरे सामने एक्टिंग नहीं किया करो, फिर करना. One upon f of x into f prime x is equal to ln x multiplied by derivative of ln function. It is 1 upon function into derivative of function. Derivative of sin inverse x is 1 upon square root of 1 minus x square plus ln of sin inverse x into derivative of ln x is 1 over x. ये हो गया f prime x is equal to f of x multiplied by, ये divide हो रहा है, shift करें, multiply हो जाएगा, ln x divided by sin inverse x into root 1 minus x square plus ln of sin inverse x upon x. f of x की जगह पे f of x की वैल्यू पुट कर दें, which is equal to sin inverse x whole raised to the power ln x multiplied by ln x divided by sin inverse x into root 1 minus x square plus ln of sin inverse x divided by x. LCM वगैरह लेना चाहें तो ले लीजिए, लेकिन बेकार होगा क्योंकि सिंप्लीफिकेशन तो होगी नहीं. नेक्स्ट. Part 10. Tangent inverse x. Tangent f of x is equal to tangent inverse x Whole raised to the power cos x plus sin x. cos x plus sin x. Taking log on both the sides, log of f of x is equal to log of tangent inverse x power cos x plus sin x. It is same as log of a power b, which is b times log of a. ln of f of x is equal to cos x plus sin x into ln of tangent inverse x. Now differentiate both the sides with respect to x. We write d upon dx of ln of function is equal to d upon dx of cos x plus sin x multiplied by ln of tangent inverse x. 1 upon function into derivative of function is equal to product of two functions. ये हो गया cos x plus sin x into derivative of tangent inverse ln of tangent inverse x plus ln of tangent inverse x into derivative of cos x plus sin x. Now it is equal to 1 upon f of x into f prime x is equal to cos x plus sin x as it is. Derivative of ln function, it is 1 upon function, yani 1 upon tangent inverse x into derivative of function. The derivative of tangent inverse x is 1 upon 1 plus x square. Now ln of tangent inverse x as it is, derivative of cos, which is minus sin x, derivative of sin is cos x. Now f prime x is equal to f of x multiplied by cos x plus sin x divided by 1 plus x square into tangent inverse x plus cos x minus sin x divided by ln of into ln of tangent inverse x.
अब f of x की जगह पे f of x की वैल्यू पुट कर दे which is equal to tangent inverse x raised to the power cos x plus sin x। बाकी ये वैसे ही देखते हैं, एलसीएम लेना चाहें तो बेशक ले लें, एलसीएम लेने के बाद कोई सिंप्लीफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट, ये एक्सरसाइज खत्म होगा। अब किताब बंद करें, एक सवाल सोचने के लिए दे रहा हूं, बल्कि दो सवाल। फर्स्ट करें, मैं आपसे कहूँ डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 कर लें, कर लोगे? ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? अरे भाई ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं विद रेस्पेक्ट टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, अब क्लीन बोल्ड, आप तो x की रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मगर मैंने थोड़ी सी चिराग कर दी, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। अरे भाई स्टेपर भी करा के आ गया। अब मैं क्या करूं? नाम लिखा है, स्टेपर करो, नाम लिखो। डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। इसके बारे में सीरियस सोचना है, आपको सिर्फ x की रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना आता है। मैंने ऑपरेटर ही बदल दिया। एक तो इसके बारे में सोचेंगे, दूसरा सपोज दैट यू आर गिवन x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू abc, फाइंड dy by dx। इसका मतलब x की रेस्पेक्ट से आप इसे डिफरेंशिएट करें, आप कर तो लेंगे, लेकिन मुसीबत यहाँ ये है कि x और y कंबाइंड फॉर्म में दे रखे। अभी तक आपने जितनी डिफरेंशिएशन की है उसमें एक ही वेरिएबल गिवन होता था। चलिए अब आप आ गए, अब मेरे भी जाने का टाइम। देखें, आपने स्टार लगाया है ना, तो असूलन आपको नंबर लिखना चाहिए था, क्योंकि मैं चेक कैसे करूँ? चलो इसमें और बारीक बिनी से चेक करना पड़ेगा, कर लूंगा, अरेगा क्यों क्या? एक गलती पकड़ी गई, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर। जब आदमी जल्दबाजी में काम करता है ना बेटा, तो यही करता है। अच्छा, दूसरी दफा भी आपने यही लिखा है, दो गलतियां हो गई। अच्छा, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव एक दफा तो आपने लिखा है सही, एक दफा गलत। sec इनवर्स x का डेरिवेटिव आप लिख रहे हैं 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर प्लस 1, ये नया फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है। cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव लिख रहे हैं -1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो बेटा ये जिस तरह से आपने फॉर्मूले लिखे हैं, आपको एल भी इसी तरह का ही मिलेगा। बहरहाल ये मैं तफसील के साथ देखूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, वादा खिलाफी नहीं होगी, एक गलती पे एक गलती। तो एडवांस में आप चाहें तो लिखना शुरू कर लें। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। तो फिर सुन लें, अगर क्वेश्चन होता x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, मैं कहता इसे डिफरेंशिएट करते, आप खा जाते इसे, एक स्टेप में आंसर है। यहाँ परेशानी की क्या बात है कि x और y कंबाइंड फॉर्म में दे रखे हैं, तो
if dy by dx कैसे, ये भी आपने सोचना है। आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं डिफरेंशिएशन के वो सिर्फ ये दो ही हैं। आप सोच के आएंगे आपको परेशानी होगी, गलत करके आए कोई बात नहीं, जब सही काम कराया जाएगा तो थोड़ा सा पता चलेगा कि आपके सोचने में गलती क्या है। हाँ, इनके बारे में थोड़ा टाइम देने के लिए बाकी काम पेंडिंग में नहीं होना चाहिए। 4.1 4.2 की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके ये अटेम्प्ट करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा। देख